उनसे वो स्पीकर ले आए यार। हाँ, सामने वालों से लेके आए। लास्ट मिनट स्पीकर देना यार। माइक माइक ये वाला नहीं, दूसरा, ये रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग के लिए ये अब आप बैठ जाएं इधर और इसको भी साथ साथ देखते रहें, ठीक है। देखूंगा कौन से इशारा इधर करेंगे, देखिए जी लेकिन देख के इधर करना है, इधर को करेंगे, ठीक है। इतना लंबा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए, इतना लोगों की लगती है। सामने रखो वो। किसमें लगाना है? लैपटॉप में? हरी आप खत्म करें बस। हेलो, ये चल रहा है सर। Stop writing. Stop writing. मैंने कहा stop writing. किसको बात नहीं आ रही? आपको बात आ रही है? आगे फिर चले। कहीं मतलब नहीं बैठे। या शाबाश, शाबाश बेटा, बेटा। रह गए? जल्दी करें ना आप लोग। Alright, anybody? कोई रह तो नहीं गया? लगा दी इसको। ये किधर गया? वो भी लेके आए यार, फिर गिर जाना है इसने भी। हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 3।
All right, let's start. Everyone can hear me? No talking now? Okay. So next topic is, we have gone through that already. Uh, and that is max term, min terms and max terms. Let's use the same example as someone suggested in the last lecture, because by that we can also talk about something else. Exclusive OR of 3 variables. Basically, exclusive OR is also associative. It doesn't matter कि 3 का लेना है तो पहले इन 2 का लें फिर उसका लें, या इन 2 का लेके उसका आंसर को इससे एसोसिएटिव करें. So usually you rarely see someone has drawn a 3 input exclusive OR. Possible, but I have not seen any decent book जो कि 3 इनपुट का एक्सक्लूसिव OR इस तरह बनाती हो. अगर 3 का बनाना है 2 का बना के फिर आगे फिर एक उसके आंसर को एक और एक्सक्लूसिव OR से एक्सक्लूसिव OR करते हैं, तो वो इस तरह से कर लेते हैं. ए बी सी. अब यहाँ पे जो मर्जी लगाएं, ए बी दे लगा दें, सी दे लगाएं, वो कौन सा ला है ये वाला? एसोसिएटिव. By the way, exclusive NAR पे check करें. Exclusive NAR, that is the opposite of exclusive OR. Associative law does not apply on that. Anyway, so let's check, see this 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0. So exclusive OR is exclusive OR of these 3. 0 exclusive OR 0 0 exclusive OR 0 0 0 exclusive OR 0 0 exclusive OR 1 1. So 1 ये सेम हो जाएगा. 0 exclusive OR 1 1 1 exclusive OR 1 0. So 1 0 0 1 1 exclusive OR 1 1 1 exclusive OR 1 0 sorry 0 exclusive OR 1 1. जिसका मर्जी कर लें आंसर सेम आएगा. All right. So if I try to write a function in the form of algebraic form, I can write that this is equal to a B C, A complement B complement C. This is equal to A complement B C complement and for this it is one that is equal to A B complement C complement, and this is one that is equal to A B C. So F will be equal to A complement B complement C plus A complement B C complement plus A B complement C complement plus ABC. Basically, if you look at this, since it is
if the input total number of ones, regardless where they are, if the total number of ones are odd, you have an output 1. Because even with even 1, 2 ones cancel out to 0. So 0, 0, 1, 1, only where their odd output is 1. यहाँ पे how many ones are here? 3. And here 1, here 1, here 1. So basically that's why it is called an odd function. It is very odd to call this an odd function, but that's how it is, right? So basically, this applies. This is this odd or even function has some very important use. Earlier on, it had a very important use in communication. In early days, and still even now, when you transmit a byte, you send what is called a parity bit. So I just want to show you another use of exclusive OR. So you want to send a parity bit. Parity can be even or it can be odd. So why is that? What does that mean? That usually you send a byte. That is called a byte-oriented protocol. There are packet-oriented, packet switch or protocols which use a much complex way of doing this parity thing. But here in byte-oriented, one simple way to do is that you send any number. For example, the byte is 8 bit. याद होगा आपको 1 byte is equal to 8 bits. So let's say these are 8 bits. Now with this we add an extra bit. फ्री में कोई चीज नहीं आती. एक्स्ट्रा बिट क्यों ऐड करते हैं और उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? We add an extra bit here which is called the parity bit. So parity bit, if I am sending you the data, I will tell you that if I tell you that I am sending the data with even parity, that means all the 9 bits combined will make an even parity number. So is this even parity? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, it's not an even parity. So I will have to make this 0 so that this is even parity. If I have another number, for example 1001, 1000, then I will take another 1. So these are examples of even parity, where you send each set of 9 bits so that total bits are even. तो उससे क्या होगा? On the receiving end, if there is an error and a bit, single bit is converted from 1 to 0, then the parity will be wrong. So if by error, if this number, किधर गए हम color chalk? If by error this number becomes 0, now I'm talking, I have agreed to send you even parity. So now how many numbers are there? 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. So that's not even. So receiver will say there is some error. It will not accept this this byte. It will tell me to resend the byte. Last byte had some error. 2 एरर अगर बिट से हो जाएंगी खराब, फिर नहीं पता लगेगा. लेकिन 2 खराब हो, इतना खराब सिस्टम होता नहीं है यूजुअली. जो कि ये सीरियल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं प्रोटोकॉल, उसमें 2 खराब हो 9 बिट के अंदर, दैट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. एक खराब हो सकती.
अक्सर तो जो पैरिटी बिट डालते ही नहीं है। पैरिटी बिट डालने का फायदा ये है कि यू कैन चेक इफ देयर वाज एन एरर इन ट्रांसमिशन। नुकसान क्या है? ये ना देयर इज अ गिव एंड टेक इन एवरीथिंग। साइज ज्यादा हो जाएगा। फॉर 1 किलोबाइट ऑफ डेटा you have some send extra 1 kilo bits because with each byte you have to are sending another bit. So for 1 megabyte of data that you are sending, you will have to send another 1 megabit data for all the parities with each byte. So give and take होता है। कब कोई free में खा, no free lunch. You will see that so much in your engineering, electrical engineering में के जो लोग हैं, to come across this that there is no free lunch. You gain something, you lose something. Life is to give and take. All right, so this is even parity. Similarly, अगर मैं आपसे कहूं odd parity, फिर मैं क्या करूंगा कि मैं इस तरह से 0 या 1 ऐड करूंगा कि टोटल मिला के 9 बिट्स जो हैं वो ऑड नंबर बन जाए, ऑड पैरिटी बन जाए। मतलब अगर ये ऑड पैरिटी होती तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ऑड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा इसको, ताकि सारे मिला के ऑड हो जाए। 1 2 3 4 5 6 तो मिला के 1 और बीच में डालूंगा मैं ताकि ये ऑड हो जाए। और रिसीवर को पता कैसे लगता है कि पैरिटी किस तरह से क्या है, वो एक्सक्लूसिव वार कर लेता है। फर्ज करें ये वाला नंबर है आपके पास, कोई नंबर बताएं 8 बिट का कोई नंबर जल्दी से बताएं। क्या नाम है आपका? मास। नंबर बताएं 8 बिट का। 1001 वही ना बता दें कोई और। 0011। तो अब अगर मैं कहूं कि ये इसके साथ मैंने ये इवन पैरिटी सेंड कर रहा हूं तो इसके साथ क्या सेंड करूंगा 0 सेंड करूंगा। रिसीवर जो है ना वो सबका आपस में और करता है। 0 और 1 का और क्या होगा 1। 1 और 0 का और क्या होगा 1। 0 और 1 का और क्या होगा 1। और 0 0 का और क्या होगा 0 0 का और हर दफा 1 वार है 0 और 0 का 0। और ये 1 अभी वैसे ही रहने देते हैं। 5 उसको बेचारे को अभी अपने साथ पेयर नहीं मिल रहा। अभी आप चाहें तो इधर से अब शुरू कर लेते हैं ताकि ये ना याद ना हो कि मेरी बारी नहीं आ रही। तो 1 0 को करेंगे 1, 1 1 को करेंगे 0, और ये 1 अभी ये वाला बेचारा वैसे ही रह जाएगा। कोई बात नहीं, नाराज ना होना। अब इन दोनों को कर लेते हैं 1 और ये 1। अब इन दोनों को करेंगे 0। तो कोई भी नंबर जिसकी इवन पैरिटी होगी आंसर 0 है। हैं? एक्सक्लूसिव आर कर रहा हूं यार, एक्सक्लूसिव आर कर रहा हूं। एक्सक्लूसिव आर 2 इनपुट्स के लिए 0 होता है। ड्रा कर दूं टेबल? ये याद है आपको? याद है ना? किसी को नहीं याद हाथ खड़ा करे, शर्माए ना। वेरी गुड यार, मेरी क्लास अच्छी है। या तो वो शर्माने में अच्छी है या वैसे ही अच्छी है। शर्माने में ज्यादा अच्छी है। हाँ, तो ये एक्सक्लूसिव आर हो रहा है ये वाला। एक्सक्लूसिव आर इज व्हेन दे आर सेम आउटपुट इज 0, व्हेन दे आर डिफरेंट आउटपुट इज 1। तो जिससे मर्जी कर लो, इसको इसके साथ करूं, उसका रिजल्ट इसके साथ करूं, उसका रिजल्ट इसके साथ करूं, तो भी एक बात है, लेकिन वो डिले बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये पैरिटी वो इस तरह से वो देखता है रिसीविंग सर्किट। अगर आपने इवन पैरिटी सेट की हुई है तो अगर तो आंसर हर बाइट की सेंड करने के बाद 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि बाइट ठीक आई। अगर 1 हो गया इसका मतलब इवन पैरिटी थी, जो 1 क्यों हो गया, तो इसका मतलब ऑड आंसर आया। ऑड आंसर का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन में कोई एक बिट जो है वो खराब हो। क्या
लीस्ट देखें, इसमें जिस तरह से मैंने बाइट लिखी हुई है, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि लीस्ट कौन सी है, और वो एक्सक्लूसिव आर करने के लिए आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है और मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है, क्योंकि वो तो एसोसिएटिव लॉ लग रहा है, जो मर्जी कर दें। लेकिन अगर मैं नंबर लिखूंगा, जैसे ASCII कैरेक्टर जब आप सेंड करते हैं ए, तो ए का ASCII कैरेक्टर 8 बिट का ये बनता है 41 इन हेक्स 10000001 41 hex, which is equal to 65 in decimal. यही होता है, कभी देखा आप लोगों ने? ये सेंड करना है ASCII कैरेक्टर, तो ये 8 बिट के जाएगा। लिखने में ये MSB LSB है, और ट्रांसमिशन में भी सबसे पहले यही जाती है। LSB फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है सीरियल पोर्ट में, LSB फर्स्ट प्रोटोकॉल। पैरिटी सबसे आखिर में जाती है, पैरिटी इस साइड पे होती है। मोस्ट सीरियल पोर्ट्स हैव LSB फर्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। पहले वो ये LSB जाती है, छोटे भाई को भेजा जाता है, उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े, सबसे आखिर में सबसे बड़ा भाई जाता है। उसके बाद उन सब का चौकीदार पैरिटी बिट। एक्सक्लूसिव आर से वो रिसीवर ये करता है ना कि इन दोनों का एक्सक्लूसिव आर करता है। 0 और 1 का एक्सक्लूसिव आर क्या होगा? 1, तो 1 आ गया यहाँ पे, ये लिखा हो 1। फिर इन दोनों का करेगा, उनका एक्सक्लूसिव आर क्या आएगा? 1 और 0 का 1, ये लिख दिया। फिर इन दोनों का करेंगे। वैसे वो तो मतलब ये कि एक ही सर्किट होता है एक्सक्लूसिव आर का बना हुआ, लेकिन जिस तरह मर्जी बना ले। इन 0 का 1, 0 का एक्सक्लूसिव का आर क्या होगा? 0, ये लिख दिया। इससे करते जाए, दो करके करते जाए। इन दो का क्या होगा? या इनका कर लें या इनका कर लें, बात एक ही है। इधर से शुरू कर देते हैं। इन दोनों का 1 क्या होता है? 0, इसका 0, ये 1 वैसे रह जाएगा 1। सॉरी, वही मैं देख रहा था, मैं किधर खराब गलत कर गया मैं। अब इन दोनों 1 का क्या होगा? 0, और 0 का 0, इन दोनों 0 का एक्सक्लूसिव आर क्या होगा? 0। तो ये 0 का मतलब है कि इसमें ये 0 बताता है कि इसमें इवन नंबर ऑफ 1, क्योंकि यहां पर जब भी इवन नंबर ऑफ 1 होते हैं ना, इंक्लूडिंग 0, आई डोंट नो इफ 0 इज इवन नंबर। 0 इवन के सेट में आता है कि नहीं? या मुझे भी नहीं याद अब, ऐसे ना बताएं, कोई बता सकता है इवन के सेट में आता है 0 के? नहीं, 2 से शुरू होते हैं यार इवन के सेट। 0 भी होता है? कौन? चलें, ये कह रहे हो तो सही कह रहे हो, उसकी मान लेते हैं बात। एनीवे, 0 इवन, 0 आंसर, 2 1 0 आंसर, 2 1 0 आंसर, 2 1 0 आंसर, तो इवन के लिए 0। सो द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, पैरिटी बिट फॉर कम्युनिकेशन। काफी दफा आपको ये सुनने पड़ेगी, वेदर यू आर कंप्यूटर साइंस और यू आर double E is parity. Anyone can ask you in your interview, what is parity bit? What is the error detecting distance of a parity bit? 1, 2 हो जाएंगी। अगर दोनों 0 से 1 हो गए तो एक्सक्लूसिव आर उनका भी वही होगा, अगर दोनों 0 हैं तो होगा। तो 1 इज द डिस्टेंस। अगर एक बिट फ्लिप हो जाए तो एरर पकड़ी जाएगी, वरना नहीं पकड़ी जाएगी। There are protocols like cyclic redundancy check एक होता है, which can detect correct errors, कि ये वाली बिट जो है ना, ये 0 नहीं थी, ये 1 आना चाहिए था। यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए था। लेकिन वो मैं नहीं जाऊंगा उस डायरेक्शन में, क्योंकि वो जरा आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ाएंगे, एरर करेक्टिंग कोड्स, बड़ा टॉपिक है वो वाला। हाँ, सेम रहेगी। तो इसलिए मैंने कहा है कि इसका एरर डिटेक्टिंग डिस्टेंस 1 है। एक बिट अगर खराब हो गई तो पकड़ी जाएगी, 2 खराब हो जाएंगी ना तो फिर नहीं पकड़ी जाएगी। दोनों साइडों के पैरिटी बनाए, फिर वो रहने देना यार, मैं क्यों आप मुझे उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं।
जो स्टैंडर्ड सीरियल पोर्ट है वो सिर्फ एक ही को पकड़ता है बस। आपने वो पढ़ा होगा कहीं के ग्रिड बना के वो CRC वगैरह या ऊपर से वो कॉलम मैट्रिक्स बना के ऊपर से भी चेक करते हैं, नीचे रहने दें उसको। तो मैंने भी बहुत अच्छा पहले पढ़ा था, मुझे याद ही नहीं है। हाँ जी, कुछ भी फ्लिप हो जाए, इवन पैरिटी बिट भी फ्लिप हो जाएगी तो वो गलत हो जाएगा आंसर। तो पैरिटी बिट इज इंक्लूडेड इन दैट। नहीं, ओवरऑल सबका बस और एक्सक्लूसिव वाल लेता है। अगर इवन बिट है तो ये 0 आना चाहिए हमेशा आंसर, अगर ऑड है तो हमेशा 1 आना चाहिए, इंक्लूडिंग पैरिटी बिट। पैरिटी बिट भी तो गलत हो सकती है ना, पैरिटी बिट के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि मैं पैरिटी बिट हूँ, प्लीज मुझे खराब नहीं करना, किसी ने मारूंगा मैं पकड़। दिस इज ओनली बेसिकली इस वक्त इसको डिस्कस कर लिया कि ये है तो चैप्टर 1 में पैरिटी, तो आपको चैप्टर 1 में इसका टॉपिक नजर आएगा पैरिटी का। यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टिंगली पढ़ाना आसान था, मुझे वहां पर मुश्किल था मेरे लिए कि वो बताऊं पूरा बिट्स क्या होती हैं, क्या एक्सक्लूसिव आर कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे वो ज्यादा आसान हो गया मेरे लिए। तो दिस इज अ नंबर। कमिंग बैक टू दिस एक्सक्लूसिव आर, पैरिटी का टॉपिक खत्म हो गया। कमिंग बैक टू दिस, तो आई कैन राइट हेयर बाइनरी काउंटिंग में कई दफा लोग लिख देते हैं, इसको कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसमें ये भी होता है कि ये वाला जो है ना, दिस इज डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द ट्रूथ टेबल, तो इसको कह देते हैं, इसको दिस इज कॉल्ड M1, min term 1। तो दिस इज min term। Min term is where all the variables are direct translation from the truth table. When you write a truth table in algebraic form, this is what you get. So this is called min term. So this is min term 1, M1. This is min term, जिसके लिए 1 है फंक्शन, वो ये वाला है, ये which is min term number 2. This is min term number 2. This is min term number 4. This is min term number 7. बाइनरी काउंटिंग हमने देखा था इस तरह जाती है, 0 0 0 0 0 1 0, फिर ये बड़ा हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने दूसरी तरह देखना है तो आप इसे भी देख सकते हैं कि इसकी वेटेज है 1, इसकी है 2, इसकी है 4, 1 to 4 वेटेजेस। अगर तीनों 1 है तो 4 + 2 + 1 7, इसकी क्या होगी 2 + 1 3। वेटेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसकी वेटेज है 1, इसकी क्या वेटेज है 6, 4 + 2 6। जैसा वो डेसिमल में होता है ना, 0 10 100 1000, वेरी यूज टू दैट। सो हम करते नहीं है कि 456 लिखा तो 4 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करें, +5 को 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 6 ऐड करके 456 आंसर निकालें। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें करना पड़ता है। सो दिस इज 4 2 1, इस तरह से दिस इज 4, दिस नंबर इज 1 0 0 इज 4, दिस नंबर इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। तो मिन टर्म इस तरह लिख देते हैं, विच इज दिस इज मिन टर्म नंबर 1 प्लस मिन टर्म नंबर 2 प्लस मिन टर्म नंबर 4 प्लस मिन टर्म नंबर 7। हाँ जी, हमेशा इसी ऑर्डर में आपने लिखना है, प्लीज हमेशा इसी ऑर्डर में लिखना है आपने। अगर आपको लिखा हुआ ना FA, B, C, देन दिस इज लिखते वक्त इसको आपने LSB पे रखना है। इसको अगर मैंने लिखूं FB, C, B, A,
फिर इधर आपने ए लिखना होगा, फिर बी, फिर सी। अच्छे सवाल हैं ये, गुड गुड क्वेश्चन। अगर आपने ऊपर कॉलम में सही लिखा हुआ है ना, तो पीछे नीचे यही आएगा, हमेशा हमेशा यही आएगा, वो नहीं चेंज होएगा। अगर आपको ये पता है कि ये वेरिएबल जो है इसकी वेटेज मैंने क्या रखनी है, इसकी क्या रखनी है, इसकी क्या रखनी है, इधर मैंने ए की वेटेज 4 रखी है, बी की 2 रखी है, सी की 1 रखी है, इस तरह से उलट हो जाता है, टेबल वही बनेगा, सब कुछ वही हो जाएगा। मतलब ये कि ये मैनेजर ए है, बी है, सी है, उल्टे भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेबल बनाने के लिए मैंने उनको वेटेज दे दी है कि टेबल सारे आ जाएं, वरना नहीं भूल जाऊंगा मैं कि कौन रह गया, कौन किसको डाला है, किसको नहीं डाला। वरना ये मैनेजर सी भी आ सकता है, फिर बी भी, दोनों सेम फंक्शन है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये बाद में ये काउंटिंग के लिए मुझे आसानी का हो गई, क्योंकि अभी बाइनरी काउंटिंग हमने इस तरह से की तो नहीं है, लेकिन वो कर देते हैं और इस तरह से उसको उन्होंने इसमें ऐड कर दिया काउंटिंग को। इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि इसको अगर मैं लिखूं तो इसका एक तरीका और भी सामने आता है लिखने का, जो जिसको बड़ा पसंद है, ये हमारा मानो जो है हमारी बुक वाला जो बंदा है, उसको ये तरीका बड़ा पसंद है, सिग्मा एम 1 2 4 7। दिस इज बेसिकली FABC। अब यहां पे मैंने जो लिखा हुआ है उसके साथ आपने चलना है, FABC go to this is exclusive OR, और ये दिस इज डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल बना के मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन में देना, तो लोग ये वाले फॉर्मेट देते हैं, दिस इज द डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द ट्रूथ टेबल। तो दिस इज कॉल्ड मिन टर्म्स। हर फंक्शन कुछ मिन टर्म्स के लिए 1 होगा, कुछ के लिए 0 होगा, एंड फ्रॉम नाउ ऑन we will always be given a function which is in this form, and we have to design a circuit। वो ये नहीं होगा कोई सिंपलीफाइड दिया हो, उसको आपने एक्सपैंड करके पहले उसको मिन टर्म फॉर्म में टेबल बनाना है या जो भी करना है या इस तरह करना, नहीं। फ्रॉम नाउ ऑन विल गिवन अ सर्किट व्हिच विल बी इन द मिन टर्म फॉर्म इन दिस लाइन ओवर हियर। अनदर थिंग इज इफ आई गो फॉर this is odd function, it also has a brother which is called even function, which is NOR। NOR के लिए आप ये नहीं करेंगे कि पहले इसका NOR ले लें, फिर इसका NOR ले लें, फिर इसका NOR ले लें, फिर इसका, वो एसोसिएटिव नहीं है। NOR करने के लिए क्या करना पड़ता है, n बिट का आपने NOR लेना है तो क्या करेंगे, सबको पहले एक्सक्लूसिव OR करेंगे, एंड में जो अगर 0 आया तो उसको 1 कर देंगे, या 1 आया तो 0 कर देंगे। NOR आपने उसका नहीं करना होता, because NOR is not associative। So NOR will be for 3 function variable, NOR will be 1 0 0 1 0 1 1 0। So if I write F complement, F complement किसके बराबर होगा, F complement is equal to in form of min terms। बताएगा कोई, in the form of min terms, what is F complement? Sorry, M3 M0 plus M3 plus M5 M6। तो ये आ जाएगा M0 plus M5 plus M3 plus M6। सॉरी, मेल हॉस्टल के आ रहे हैं मेरे ख्याल, फीमेल हॉस्टल के नहीं आ रहे हैं, तो उनका भी M1 M2 ही है क्या।
ऑलराइट, सो इनको ले लेते हैं हम, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं. दिस इज m0 इज इक्वल टू, अगर आप यहां से देखें m0 इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट. m3 किसके बराबर है? a कॉम्प्लीमेंट b c. m5 किसके बराबर है? a b कॉम्प्लीमेंट c. और m6 किसके बराबर है? a b c कॉम्प्लीमेंट. तो इसका कोई लिखवाएगा मुझे फिर किसके बराबर होगा? f कॉम्प्लीमेंट. ये इस फॉर्म में तो इसके बराबर है, इन अलजेब्रिक फॉर्म किसके बराबर होगा? इन लिटरल फॉर्म m0 के लिए m0 इज जीरो टर्म, उसके लिए 1 है. तो क्या होगा भाई बताएं? a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट. एक या 3 कॉम्प्लीमेंट हैं इसमें, देख रहे होंगे आप. यहां से f कौन लिखेगा? है नहीं आता? कौन है शेर? ये शेर नहीं. हाँ आ गए, आ गए. हाँ आए ना. कॉम्प्लीमेंट को उसको एफ लिखना है यहां से. चौक ले ले वहां से कोई. ब्लू ना ले, वो ज्यादा दूर से नजर नहीं आता. येलो ले लें. देखें जी इनके लिए समझ आ गई है सबको? यह समझा दें क्यों भाई? पूछ लें इनसे कि समझ आ रही है कि नहीं. आपने पूछना है इनसे. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. इनके लिए ढेर सारी तालियां. ये वाटर कूलर आपका नहीं, किधर गया? कोई नहीं है, सॉरी. f इज इक्वल टू दिस. ये किस फॉर्मेट में नजर आ रहा है आपको? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. तो इसको कहते हैं, अरे इसका a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट का मैं अगर कॉम्प्लीमेंट लूं, ये आ जाता है a प्लस b प्लस c. यही आता है ना, ये अभी इन्होंने लिखा है. तो इसको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कहते हैं. इसको मैक्स टर्म कहते हैं. m0 इनटू, ये क्या मैक्स टर्म है? m3. ये देखें 1 0 0 इनटू मैक्स 3 इंटू, नहीं मैक्स 3 है, हाँ मैक्स 5 इंटू मैक्स 6. सो ये आपका दूसरी फॉर्मेट में आ गया नंबर. वही फंक्शन है, एग्जैक्टली वही चीज है. इसको भी आप इंप्लीमेंट करेंगे, इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे तो वही आंसर आएगा. इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे वही आएगा. फर्क दोनों में क्या है? Here you have to use, फर्स्ट लेवल पे आपको एंड गेट यूज करने पड़ेंगे, फिर और गेट्स. उसमें पहले और गेट फिर एंड गेट. दे आर बोथ एग्जैक्टली सेम. तो इसको कैसे लिखते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में? f इज इक्वल टू, कौन है भाई मैथ का, फिजिक्स का चैंपियन? f इज इक्वल टू है, कौन है? पाए. Oh, well done, very good. इनके लिए भी ढेर सारी तालियां जी. हाँ. पाई m
0 3 5 6। तो बेसिकली एक फंक्शन जो है ना, ये जिस टर्म के लिए 1 है उसको कहते हैं फंक्शन इज 1 फॉर दीज टर्म्स। जिसके लिए 0 है वो मिसिंग टर्म्स कहते हैं उनको, मिसिंग टर्म्स। सो अगर आप मिसिंग टर्म्स का लें तो आपके पास एफ कॉम्प्लीमेंट आएगा फॉर विच द फंक्शन इज 0। पर जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेके यहां पे आते हैं तो ये आपके पास आ जाता। तो 4 तरीके हैं एक फंक्शन को प्रेजेंट करने के। 4 तरीके क्या हैं? दिस वाज इक्वल टू सिग्मा m 1 2 4 7। f complement is for which this is 0. f complement is missing terms. So what are those missing terms? 0 से लेकर 3 वेरिएबल के you will go from 0 to 7. So what are those missing terms here? Are you listening? Missing term इसमें कौन सी होंगी? 0 3 5 6 मिसिंग टर्म। f complement वो ऊपर हमने लिखा था। और f is also equal to sigma pi m missing terms मैक्स टर्म इसको कहते हैं। मैक्स टर्म इसको कहते हैं a प्लस बी प्लस सी। ये कहां से आई है? इसको जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, डिमॉर्गन लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये आ जाता है। सारे का कॉम्प्लीमेंट लें यहां से, क्या आएगा? इस सारे फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें, सारे फंक्शन का क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा? वो यही आएगा ना। तो इसमें जो टर्म्स आती है ना, ये मैक्स टर्म इनको कहते हैं। So these are max terms. Basically, they are complement of min term. इसका complement लें तो ये आ जाएगा, इसका complement लें तो इसका max term आ जाएगी, इसका complement लें तो इसकी max term आ जाएगी, इसका complement लें तो इसकी max term आ जाएगी। और उसके लिए फिर आप वो फंक्शन देखते हैं जिसके लिए वो 0 है। तो pi m for those term which is 0 is this। आपके सामने निकाला मैंने। तो दिस इज पाई एम, मतलब कि प्रोडक्ट, पाई का मतलब प्रोडक्ट ऑफ m0 m3 m5 m6। प्रोडक्ट ऑफ m0, दिस इज m0 m3 m5 m6। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस। सो 4 तरीके से आए। एक तरीका तो ये है ना कि f इज इक्वल टू दिस, ये तो स्ट्रेट है ना, ये समझ आ रही है आपको। f कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू मिसिंग टर्म्स, ये भी सीधा है, वो लिखा हमने। f इज इक्वल टू, जब इसे इधर आते हैं तो f इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाता है पाई m। और अगर इसको मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूं, इसका कॉम्प्लीमेंट लूं, वो भी f कॉम्प्लीमेंट आएगा। वो क्या होगा? पाई m टर्म्स। तो 4 तरीकों से आप यू कैन राइट द सेम फंक्शन इन 4 डिफरेंट वेज। नहीं, एक फंक्शन और जल्दी से ऐसे एग्जांपल के लिए मैं एक और फंक्शन लिखता हूं ना, तो उसमें आप देखें कि दोनों में क्या फर्क होगा। ऐसे मैं जल्दी से लिख दूं, टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर। ए बी सी, अगली दफा मुझे याद करा दीजिएगा, इसको ज्यादा देखें। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब यहाँ फंक्शन कोई बताएंगे, कोई रैंडम सा फंक्शन बताएं, वो तो एक्सक्लूसिव आर का था ना, कोई रैंडम सा फंक्शन बताएं। रैंडम नंबर जनरेट करें, 8 रैंडम नंबर 0 एंड 1 जनरेट करें यार, जल्दी करें ना। 0 1 1 0, वो तो वही हो गया। क्या कर रहे हो यार, टाइम नहीं है। 1 1 1 1 कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब ये फंक्शन है, इसका सिग्मा एम जो है उसमें कितनी टर्म्स आएंगी? एफ इज इक्वल टू सिग्मा 0 1 2 3 4 5 6 7। एफ इज इक्वल टू सिग्मा एम किन जिन टर्म्स के लिए ये 1 है ना, बाकी सारी। सो एम 1 2 4 5 6 7। एफ कॉम्प्लीमेंट किन के लिए 1 है? एफ कॉम्प्लीमेंट जिसके लिए फंक्शन 0 है उसके लिए, तो एफ कॉम्प्लीमेंट किन के लिए 1 है? 0 और 3। अब आप देखें कि इसको इंप्लीमेंट करना आसान है या इसको करना है। इसको करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, पहले आप मैं एक्सक्लूसिव वो लगाएं एंड गेट, आखिर में इन्वर्ट कर दें, एफ कॉम्प्लीमेंट आएगा, आखिर में इन्वर्ट कर दें, एफ आ जाए। दूसरा तरीका ये कि आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, एफ इज इक्वल टू पाई एम 0,3। उसमें यह है कि आपको आखिर में इन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ इनका पहले लेवल पे आप और करेंगे, एंड में इन दोनों के आंसर को आपस में एंड करें, और एंड, इसको कहते हैं और एंड, इसको कहते हैं एंड और देखे ना, पहले एंड है, एंड नेक्स्ट लेवल पे क्या है? और इसमें क्या है? पहले लेवल पे और अगले लेवल पे क्या है उनके बीच में? एंड डुअलिटी है इस कोर्स की, ये ड्यूअल मैंने बताया था आपको पागल कर देगी, बट दिस इज हाउ इट इज, द dualness of this course, the dual nature of this course, the dual personality kind of thing is there all the time. Anyway, so this is I think we end here. Thank you very much. Any more questions? So next time we'll start from here. उस फंक्शन का सीधा अगर यूज कर दो और जब इनका बन तो बहुत तरह का उसका ये तो सीधा मैक्सिमम नहीं आ जाती किसका? ये फंक्शन है नोट निकाला ना, हाँ, तो आप इसका नोट लेते हैं, फिर वहां पे अलजेब्रा में जाके इसका नोट लेते हैं। अगर हम सीधा इसका पकड़ के, तो इसकी मिन टर्म ये है और इसकी नहीं कौन सी है, इसकी ये थी मिन टर्म किधर गई है ये, हाँ, अगर सीधा इसका ड्यूल ले लें तो वो ये मैक्सिमम नहीं बन जाएगी। हाँ, दोनों ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। इस तरह भी मैं लिखूं, उसे एफ कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसके साथ ये मैक्सिमम नहीं आती इससे, मैक्सिमम बनानी, मैक्सिमम निकालेंगे, लेकिन जब सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे एंड में, तो जो आपके पास एक सारों को और एंड करेंगे ना, एंड में इन सारों को एंड करेंगे जब, अच्छा, तो जो आंसर आएगा ना वो एफ कॉम्प्लीमेंट आएगा आपके पास। है तो हाँ, इधर मैंने एफ कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट किया था ना, हाँ ठीक है, तो इसलिए मैं एफ पे पहुंच गया था। इधर अगर मैं एफ इसके साइड का कॉम्प्लीमेंट लूंगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये तो इस फॉर्म में आ गया, लेकिन इधर भी तो एफ कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट। इसका ये फायदा होता है कि हम अगर हम उसको मिन टर्म्स के तौर पे उसको सर्किट बनाए तो हमें ज्यादा गेट्स, बहुत ज्यादा गेट, हाँ, तो ये इस तरह हेल्पफुल होती हेल्प नहीं होता, बस मतलब ये है कि देखिए मैं इसका वजह बताऊंगा कि क्यों होता है। मैक्सिमम नहीं होता, हेल्पफुल नहीं होता, चाहे आप 0 ले लें चाहे 1 ले लें, एंड ऑफ द डे सर्किट दोनों की इक्वल कम्प्लेक्सिटी का ऑलमोस्ट बनता है, आप देखेंगे, चाहे आप वो कर लें चाहे वो कर लें। चलो सही, ठीक।
सही है। ओ, थक गए हैं यार आज। चले ये स्टॉप कर लेना रिकॉर्डिंग यार, और यूएसबी पे डाल लेना फिर। है यूएसबी कोई? हाँ सही हो गया ना ये काम, फर्स्ट क्लास हो गया है ना। हाँ ये कहते हैं ये खुद बैठ के काम करना पड़ता है इसको, ये करते हैं ना कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक ये है कि इसमें 3 सेटिंग है, आप बटन दबा सकते हैं तो वो एक तरफ सेट हो जाएगा, फिर दबाएंगे दूसरी तरफ।